Okay, so we are done with this C part. So now we are going to attempt this D part. So now what is happening in D part is they are asking for in triangle LMN, LMN, the angle is already given to us, which is 30, and ML is equals to 2 times of MN. So let's suppose if I'm drawing a triangle. So you have these values. This is L, this is M, and this one is N. So right now you guys know this angle, which is 30, and so I can easily calculate the area by using the formula of area, which is 1/2 multiplied by A multiplied by B multiplied by sine theta. So I'll replace the value of area which is already given to me, and the value of area right now is given 18. Okay, so this side is going to be LM and this side is going to be MN. So I know right now the value of ML or LM, they are both exactly the same thing. So if I'm going to replace that thing, so I will write the length of ML is basically equals to 2 times of MN. So I'll replace this LM. First I'll write LM. हम LM यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद write MN multiply by sin 30, ताकि ना कॉन्सेप्ट बन जाए कि यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है. अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग LM हम यहाँ पे क्या करेंगे, I'll replace this thing with MN और multiply by MN. सही है, ये LM की जगह के ऊपर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 times of MN लिख दिया और multiply by sin 30. And now as you guys know यार, sin 30 की जो वैल्यू है, that value is basically equals to 1/2. तो 1/2 यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है, multiply by this becomes 2 multiply by m n square multiply by 1/2. 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 उस तरफ शिफ्ट होकर there is going to be 36 and this becomes mn square. So if the examiner is asking for the value of mn, तो आपने यहाँ पे square root on both sides कराया, तो mn की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई, 6 निकल आई. So that was a very simple part. ये आपके पास इस तरह से हो गया. And if you notice this thing, तो ये पूरा सवाल जो है आपके पास 4 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है, आपको 4 मार्क्स यहाँ पे, तो 8 मार्क्स and then you are getting 4 more marks. So basically you are getting 12 marks in this particular question. Okay, so now I move forward. So this is the next one, question number 1, 4024, paper 22, October, November 2013. The first thing which the examiner is asking is to calculate the area of the field. So I have these all information right now. एक हमारे पास triangle है, एक ट्रेपेजियम है, एक दूसरा ट्राइंगल है. सो अगर हमें यहाँ पे सबका यहाँ पे एरिया निकालना है, सो आई वांट टू फिगर आउट द एरिया. सो आई विल यूज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. हमारे पास सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज होगा, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज होगा, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस अगेन द थर्ड वाला जो भी आपके पास आ रहा है वो आ रहा है बेस इनटू हाइट. सो नाउ यू आर यूजिंग दिस थिंग. तो आपके पास क्या आ रहा है, 34 multiplied by 40 plus 1/2 sum of parallel sides 40 plus 58, or inside the bracket you have 58 multiplied by the height which is 38 plus 1/2 multiplied by base which is 42 multiplied by 58. Now after solving this thing with the calculator, तो आपके पास यहाँ पे ये values वगैरह सारी की सारी निकल आएंगी, and that value is basically going to 0.5 into 34 into 40. This is 680. 0.5 into 40 plus 58 multiplied by 38. That value is going to be 1862 plus 0.5 multiplied by 42 multiplied by 58, and that value is going to be 1218. And after adding these values, 680 plus 1862 plus 1218, so you'll be getting the value. ये आपके पास आ जाएगा, एरिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3760, एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही है, तो यू विल राइट 3760 एज योर फाइनल आंसर. आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे इस पार्ट ए के अंदर. नाउ आई एम सॉल्विंग पार्ट बी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन पार्ट बी इज यू नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बीसी. अब आपको यहाँ पे ना बीसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है. अब बीसी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इफ यू आर लुकिंग एट दिस ट्रेपेजियम, सो दिस इज द होल फिगर विच इज राइट नाउ, जो मैंने यहाँ पे बना लिया. मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर जाऊँ नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर, ताकि हमें ना कुछ चीजें रिलेट करने में बहुत ज्यादा आसानी है, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ बीसी. ये वाला ट्राइंगल बना है. अब हम डायमेंशंस वगैरह लिखेंगे. दिस 40, दिस वन इज 58 एंड दिस वन इज 38, राइट. सबसे पहला काम ये करना है कि यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीसी. सो दिस वाज बी एंड दिस वाज सी. सो बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, एंड ऑब्वियसली अगर ये 38 है तो ये भी आपके पास क्या होगा, 38 होगा. ये आपको बात पता होनी चाहिए.
एंड द टोटल लेंथ ऑफ दिस थिंग वाज 58 में से आपने इतना सा 40 माइनस कराना है, तो 58 माइनस 40 एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू विच इज गोइंग टू बी, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 18, तो ये आपके पास 18 आ गया। देन यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ BC। अब BC की अगर आपको वैल्यू निकालनी तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, a² = p² + b²। h की जगह पे आई राइट b, BC लिखा, परपेंडिकुलर की जगह पे 18 आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने 38 लिख दिया। देन यू हैव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब आपने BC का स्क्वायर रूट वगैरह कराया 18² + 35, 38² and that value is going to be 18² + 38² and that value is going to be BC is equals to 42.04759। और अगर आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखने की कोशिश करोगे सो यू राइट 42.0, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट CDE। अब D भी जरा आप मार्क कर देते हैं, सो दिस वाज अ पॉइंट विच वाज ऑफ D, राइट, ये D वाला पॉइंट था। सो अगेन राइट नाउ आई विल ट्राई टू ड्रॉ अनदर ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई विल यूज ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन टू मी। 58 एंड 42 ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये ट्राइंगल जरा एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज 58, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू and this value is already given to you which is 42, this one is E, this one is D और ये वाली जो वैल्यू है this is C। अब आपको यहाँ पे CDE की वैल्यू निकालनी है, तो CDE आपके पास क्या है, ये वाला थीटा, यू गाइस नो कि ये वैल्यू ऑपोजिट की हो गई और ये आपके पास क्या हो गया, एडजस्टेंट हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऑपोजिट की जगह पे यू विल राइट 58 और एडजस्टेंट से आप डिवाइड करोगे 42, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई tan इनवर्स 58 divided by 42, so you will get the value of theta, and right now the value of theta is basically coming 58 divided by 42 and that value is coming 54.09 and that is going to be 54.1। एंगल आपके पास 1 डेसिमल प्लेस के अंदर आप लिखते हो, तो ये आपके पास CDE वाला एंगल भी आ गया। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब हम नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 4024 पेपर 22 अक्टूबर नवंबर 2013। सबसे पहले वाले पार्ट में आपको ये बोला गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ BC। तो अगर आप BC की बात करते हो तो BC की आपने लाइन एक्सटेंड करी और BC की लाइन जैसे ही आपने एक्सटेंड करी तो आपने देखा कि यार ये आपके पास ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल के अंदर कोई पेयर नहीं बन रहा है, सो देयर इज नो पेयर। सो व्हेन देयर इज नो पेयर एंड यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू, और आपके पास ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप यहाँ पे यूज करते हो कोसाइन रूल, तो हम कोसाइन रूल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सो आई राइट A² इज इक्वल टू B² + C² माइनस 2BC cos A, और आपने यहाँ पे लिखा BC का स्क्वायर, आपने 8 को B कंसिडर करा दिया, इसको 6 C कंसिडर करा दिया, देन 2 × 8 × 6 एंड मल्टीप्लाई बाय cos 115। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये आपने cos 115 कराया, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब आपने कराया, सो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, ये आपके पास आ रही है 8² + 6² मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय cos 115 and the answer which you are getting right now is 140.571 and BC इसका पूरे का आपके पास आंसर है, I'm writing the other value also 5713531 और इस पूरे का जब आपने स्क्वायर रूट कराया तो स्क्वायर रूट के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है BC की, दैट वैल्यू इज कमिंग 11.856 एंड अगर आप इसको लिखते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर्म के अंदर तो आपके पास आता है 11.9। सो BC इज गोइंग टू बी 11.9। यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर द बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज 200। बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज 200, तो B फ्रॉम A की जो बेयरिंग है वो 200 है। दैट मीन्स कि आपके पास ये वाला जो एंगल है फ्रॉम A से लेकर ऑल द वे यहाँ तक आपके पास ये गिवन है 200। सो दिस इज 200, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल 200 में से 115 माइनस करेंगे। 200 में से हमने 115 माइनस कराया, यू विल गेट द स्मॉल वैल्यू। ये छोटी वाली वैल्यू आपके पास आराम से यहाँ पे निकल आएगी एंड दैट स्मॉल वैल्यू इज बेसिकली 85 डिग्री। ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बोला गया A फ्रॉम C। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम A की हम बात करें, सो द वैल्यू ऑफ बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम A की जो आपके पास बेयरिंग है वो आपके पास वैल्यू है 085। बट अगर इसी चीज को आप यहाँ पे उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक काम ये करना पड़ेगा कि इफ दिस वैल्यू इज लेसर देन 180
तो आप इसके अंदर 180 क्या करा दो, इसके अंदर ऐड करा दो, तो आपके पास ये वाली बेयरिंग निकल आएगी. सो फाइनली यू विल गेट दिस आंसर और ये आपके पास आ जाएगा 265 डिग्री. तो ये आपके पास 265 डिग्री आ गया. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी पार्ट. ये रिवर्स वाले अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. नाउ दिस इज द लास्ट पेज फॉर 2013 पास्ट पेपर्स. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इन ट्राइंगल बाय यूजिंग साइन रूल शो दैट पी आर इज इक्वल टू, आपको ये शो करना है कि पी आर इसके इक्वल है. सो आई नो दिस वैल्यू कि यार यहाँ पे है पी आर, और सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे एस आर, जो एस आर पी वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप ये वाला एंगल निकाल लो. तो उसका रीजन ये है कि एस आर पी वाला एंगल आगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस एंगल. या आप एक काम ये कर सकते हो कि यू हैव दिस प्रॉपर्टी के 36 + 44 यू आर गोइंग टू गेट दिस एंगल. ये डायरेक्टली आपके पास ये वाला एंगल भी निकल आता है. तो आपने 180 में से 44 - 36 करा, 180 - 44 - 36 यू विल गेट दिस एंगल विच इज गोइंग टू बी 100. ये वाला एंगल आपके पास 100 हो गया. तो इसी तरह से अगर आपके पास पी आर क्यू वाला जो एंगल है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 180 - 100 एंड दैट एंगल इज गोइंग टू बी 80. सो अगर 44 + 36 भी करते तो भी वही बात थी. ठीक है, तो आप जिस तरह से करना चाहो उस तरह से आप कर सकते हो. अब नाउ आई हैव दिस एंगल विच इज 80 डिग्री. सो आई वांट द वैल्यू ऑफ पी आर. तो हमने यहाँ पे वही रेशो यूज किया, साइन का साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b. हमने ये चीज यहाँ पे यूज करी एंड देन आई विल मल्टीप्लाई. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम करेंगे कि आई विल राइट साइन 80. सबसे पहले जो हमें क्या क्या दिया हुआ. अच्छा गाइस, द प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज कि हमारे पास प्रॉब्लम ये कि वी नो दिस एंगल 80 एंड वी नो दिस एंगल 65 ऑल्सो, बट ये जो साइड आपको गिवन है 200 की, इसके सामने वाला एंगल नहीं गिवन. तो आपने अगेन यहाँ पे एक और काम करना है कि यू नीड दिस अनदर एंगल. तो यू नीड आर पी क्यू. तो आपने 180 में से माइनस करना है 80 माइनस करना है 65. सो 180 - 80 - 65. सो यू विल गेट दिस एंगल विच इज गोइंग टू बी 35. तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, 35 आ गया. अब आप जरा ये फॉर्मूला बनाओ. सो यू राइट साइन 35 अपॉन 200. देन यू विल राइट पी आर के सामने वाला एंगल साइन 65 अपॉन पी आर. अब आप पी आर को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो. पी आर ये हो जाएगा पी आर मल्टीप्लाई बाय साइन 35 इज इक्वल टू 200 साइन 65. और अगर मैं यहाँ पे जाके डिवाइड कराऊं तो ये हो जाएगा 200 साइन 65 डिवाइड बाय साइन 35. ये आपने शो कर दिया, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए. अब नेक्स्ट वाले पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि हेंस शो दैट एस आर इज इक्वल्स टू, ये पूरी आपके पास एस आर के लिए आपको यहाँ पे प्रूफ करना है. सो फॉर एस आर व्हाट यू गाइज आर सपोज टू डू, नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ पी आर. यहाँ पे आपके पास पी आर की वैल्यू तो ऑलरेडी है और पी आर के सामने आपके पास क्या आ रहा है, 44 आ रहा है. एस आर के सामने आपके पास एंगल क्या आ रहा है, वो. सो अगेन आई यूज साइन रूल, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी. और हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि आई विल राइट द एंगल विच इज ऑपोजिट टू पी आर. तो आई विल राइट साइन 44 और अपॉन के अंदर हम अभी पी आर की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे. सो आई सिंपली राइट पी आर एंड देन आई राइट साइन एस आर निकालने. तो साइन 36 अपॉन एस आर ये आपने करा. देन आई क्रॉस मल्टीप्लाई और एस आर को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा. सो एस आर इज इक्वल टू साइन 44 इज इक्वल टू पी आर साइन 36 एंड आई विल मेक पी आर एज अ सब्जेक्ट. सो ये हो जाएगा आपके पास पी आर साइन 36 अपॉन साइन 44. नाउ आफ्टर डूइंग दिस थिंग हमने अब क्या करना है कि हमने यहाँ पे पी आर, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पी आर इज बेसिकली दिस थिंग. ये पूरी आपके पास 200 साइन 65 अपॉन साइन 35 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ पी आर. तो हमें इसके साथ रिप्लेस करना है. जब हमने एस आर यहाँ पे पी आर की जगह पे पूरा रिप्लेस किया तो आई विल सिंपली राइट 200 साइन 65 और ये मल्टीप्लाई हो रहा था. इसको थोड़ा सा मैं अलग करके भी लिखता हूं. डिवाइड बाय साइन 35 मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिवाइड बाय साइन 44 एंड व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज थिंग तो आपके पास यहाँ पे ऐसा हो गया 200 साइन 65 साइन 36 और ये आपके पास फाइनली हो गया डिवाइड बाय साइन 35 साइन 44. ये भी आपने यहाँ पे शो कर दिया. 2 मार्क्स आपको इस बात के ऊपर भी आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए. तो अब आपसे क्या कह रहा है कि हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर. सो यू गाइज नो द वैल्यू. ये आपके पास वैल्यू आ गई. तो एस आर के पास आपके पास क्या है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस आर विच इज गोइंग टू बी साइन 200 साइन 65 साइन 36 ये आपके पास डिवाइड होगा साइन 35 साइन 44 एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ एस आर विच यू आर गेटिंग राइट नाउ. दिस वैल्यू इज बेसिकली 200 साइन 65 साइन 36
और डिवाइड बाय साइन 35 साइन 44, लेट मी चेक इट फॉर द वन मोर टाइम। ये है 200 साइन 65 मल्टीप्लाई बाय साइन 36 और नीचे डिवाइड हो रहा है साइन 35 मल्टीप्लाई बाय साइन 44। सो द फाइनल आंसर इज बेसिकली गोइंग टू बी, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 267.4। अब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 267, तो ये इसका आंसर आ गया 267। सही है, ये सिंपल सा पार्ट का ये आंसर आ गया। अब कह रहा है कि हेंस इवैल्यूएट एरिया ऑफ ट्राइंगल SPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो इस वाले पार्ट को मैं जरा ऊपर सॉल्व करूंगा, मैं जरा इस वाले पार्ट को जो इसका ट्राइंगल है रेलेवेंट, मैं जरा इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे ये बहुत ज्यादा काम आ जाए सारी की सारी चीजें, और ये इजीली वी कैन यूज दीज ऑल इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे पास ये इसकी एक जरा हेल्प रहे। सही है, अब हमें यहाँ पे क्या क्या हम नोटिस करें, हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करें, जो चीजें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल SPQ की अगर हम बात करें तो SPQ के एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट SPQ एज अ होल ट्राइंगल, तो इस पूरे की जो बेस होगी दैट बेस इज बेसिकली SQ, या बेस आपके पास SQ है, और हाइट आपके पास दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन हाइट है। सही है, हाइट की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया H। 1/2 दूसरे वाले ट्राइंगल में आपको बोला गया PQR, सो दिस इज PQNR। दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपके पास यहाँ पे बेस है वो आपके पास बेस है QR की, और हाइट आपके पास दोनों कॉमन है। सो दैट मीन्स 1/2 आपस में कैंसिल हो गया, और ये H और H आपस में ये आ गई। ये आपने याद होगा सिमिलैरिटी में पढ़ा होगा, ये एग्जैक्टली वही चीज यूज हो रही है कि व्हेनेवर द हाइट्स आर एग्जैक्टली सेम, तो आपके पास क्या होता है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज बेसिकली इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ये इसके इक्वल हो जाता है। वही एग्जैक्ट सेम काम यहाँ पे हुआ है। सो राइट नाउ आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ SQ की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि हमें उसके अंदर SQ के अंदर SR प्लस RQ ऐड करवाना पड़ेगा। SR की वैल्यू आई थी 267.4 प्लस RQ की वैल्यू 200 है, तो आपके पास ये होगा 267.4 प्लस 200 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 467.4। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग SQ आई राइट 467.4, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे QR की वैल्यू दैट इज 200, और जब आप इसको डिवाइड कराओगे 467.4 डिवाइड बाय 200, सो यू विल गेट द रेशियो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.337। सो आई विल राइट के इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.34। सो वी आर डन विद ईयर 13। ये आपने 2013 के ट्रिग्नोमेट्री के सारे आपने पास्ट पेपर्स यहाँ पे कर दिए हैं। सो इफ यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो अगर आप मार्क्स देख रहे हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द नेक्स्ट 2014 एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ द पास्ट पेपर्स।